Sure. See the first question, beta. We have got a thin rod of length, how much? F by 3, which is being placed along the principal axis of your concave mirror of focal length of your F, such that its image, which is real, image is your real, and it is elongated, just touches the rod. What is its magnification? What is the magnification? So try to understand the question. We got a thin rod of length, how much? F by 3. So we got a thin rod of length F by 3 kept in front of your concave mirror. This is your concave mirror and this is your principal axis. If it is a concave mirror means it is silvered outside like this. So this is your silvering right now here. And this is your pole of the mirror. That is nothing but of your P. And where is an object being kept right now? So object is kept somewhere in front of this one like this. Okay. So this is your object. This is say for example A and this one is of your B. The distance of this one is nothing but of your F by 3. Okay. Now see here what is condition is telling is such that its image is real and elongated, just touches the rod. And you know that when object is kept only at the center of curvature, then only it will be image will be formed at the same point. That basic knowledge we know. So this is the center of curvature right now for me. The distance from the center of curvature to the pole will be equal to how much, beta? This is the radius of curvature R. R will be equal to 2 times of, isn't it? So this is your 2F. This distance is nothing but F by 3. So the distance from here to here, this will become for me how much, beta? This will become for me 2F minus of your F by 3. That means minus of your 1 by 3. That will become for me how much, beta? 5F by your 3. Clear? A to P distance F by 3 part. Is that clear? Yes, sir. Isn't it? Now see, the end A is nearer to the mirror. It is at what distance, beta? 5F by 3. B is at a distance of your how much, beta? 2F. 2F, yes. Isn't it? So now what is asking in the problem is, what is the magnification? So what is the magnification on this one, beta? We'll be getting what type of a magnification? Lateral magnification. Let us try to talk about the image of your A right now. You can even do the B, beta, but once you know this one, automatically you can calculate for the other value if I'm taking into consideration. Now what is an object distance we got, beta? Object distance from the pole will be equal to minus of your 5F divided by 3. For concave mirror, the focal length as usually you know it is negative. We need to calculate the image. So I can use the mirror formula 1 by V plus of your 1 by U is equals to your how much, beta? 1 by F. So this will be equal to 1 by V. This one will be equal to your plus divided by 1 by, this is minus of 5F divided by 3. That is equals to 1 by, this is minus F. Isn't it? Yes, sir. This will become how much for me? 1 by V. You take this one on other side. So this will become for me 1 by V is equals to, this is minus of 1 by F. This is plus minus minus. If it is going on other side, that will become for me plus 3 will go up. So this will become for me 3 by 5 times of your F. So if I take the LCM for this one, the LCM for this one is nothing but equal to your 5F. So this will be equal to your 5F and this will become for me how much, beta? Minus 5. This will be for me plus 3. So minus 5 plus 3 is nothing but minus 2 divided by 5 times of your F. So this is your 1 by V. So I can calculate the image distance right now. So image is formed at what distance, beta? Minus of your 5F divided by 2. So this is the image formation. So I got the V. Is it clear? So what will be the image length at that time? Then? What will be the image length at that time right now? 5F by 2 is right now greater than 2F or lesser than 2F? Yes, sir. 5F by 2 is greater than 2F or lesser than 2F? Lesser than 2F. 5 by 2 is how much? 2.5. 2.5 means what is the object? What is the distance from center of curvature? More. 2. So Yes, it will be sir. more. So image length More. will be equal to how much right now for me? Image length will be equal to your image length is formed at what distance, beta? 5F by 2 minus of your 2F. So 5 by 2 minus 2 is nothing but equal to how much for me? 1 by 2, that is F by 2. So if I'm talking about longitudinal magnification, that is nothing but of your size of image by your size of your object. So this will be equal to your size of your what? Image divided by your size of your object. Size of your object. So size of image is how much right now for me? This one is how much, beta? Minus sign already. So this one is nothing but of your minus. Image of length is how much for me? F by 2. Object distance is how much for me, beta? F by 3. Is that clear? Yes, sir. Object distance is how much, beta? F by 3.
minus of your size of image by your size of your object. So how much I'm getting this one? This F will get cancelled. So this will be equal to minus of your 3 by 3 2. by So 2. this will be the longitudinal magnification. Is that clear? Yes, sir. Isn't it? So these models are also very, very important, beta. Sure. Let us try to go for the next question, beta. Question number 54, dekho, beta. It's very good question here. We got a short linear object of length b, which lies along the axis of a concave mirror of focal length f at a distance u from the mirror. The size of the image is approximately is asking basically. So short linear object is been right now kept for me, which of length of how much for me for this one is b, which is lying on the axis of your concave mirror, which is lying on the axis of your concave mirror, just like of a previous case only, beta. I'll just try to draw the diagram for this one. So what type of a mirror, beta? Again, this one is your Concave. concave mirror, and this one is your principal axis. So silvering is on the outer side. So if this is a silvering and this will be the pole of the mirror, that is nothing but equal to your P. So on this one, somewhere we are having an object right now, beta. So the length of this object is given how much for me or P. See this one, the short linear object of length how much b lies on the axis of a concave mirror of focal length f. So focal length of this mirror is given as of your f at a distance u from the mirror. That means the distance of this one from the mirror is how much for me, beta? The U. distance of this one from the mirror from here to here, this distance I'm taking it as of your u. Okay. Distance u from the mirror, the size of the image will be equal to your how much? The size of the image will be equal to your how much? This is your pole. You know that longitudinal magnification will be equal to your minus of your dv by your du. Small change in the image divided by small change in the object. Object. That is equal to how much, beta? V minus of your u whole square. Okay, or else if I'm writing in terms of focal length, this already I told you, this is minus of your f divided by your u minus of U your minus f N. whole square. Okay, so du is here what, beta? Du is right now for me object length for small objects, for object length, and dv will be equal to how much, beta? Image. Image. So this will be your image length. Okay, now dv already we got, so dv we need to calculate. Dv is equal to how much we need to calculate. Du is equal to how much he has given for me the problem, beta? B, isn't it? So I can write this one as of your dv divided by your b is equals to, this one is nothing but equal to how much, beta, for me? Can you tell me? Object length right now, this is a minus, focal length will be how much for this one, beta? It is minus f divided by object distance is also negative, this is minus, focal length is also minus, this is your minus, and this one is right now for me whole square. Is that clear? Yes, sir. Isn't it? Sure. So we need to calculate dv. So dv will become how much for me, beta? So just one simplify for this one. तो ये कितना बन जाएगा बताओ जल्दी से? This will become for me f divided by, this one is minus, this one is nothing but here also there is a minus right now, sorry. So minus of minus, this will be become for me plus. So this is your minus plus, this will be equal to how much, beta? U minus of your f, this will become for me whole square. So this is your dv divided by your d. That means image length will be equal to how much, beta? So this is your b into, this is your f divided by your u minus of your f. This one is nothing but of your Whole whole square. square. Clear? Yes, sir. So this is also an important model. ऐसे वाले problems compulsory करना आना चाहिए आप लोग को. चलो next one. This is also again very important model, beta. A small piece of a wire bent into an L shape with an upright and horizontal portions of equal length is being placed with a horizontal portion along the axis of a concave mirror whose radius of curvature is 10 centimeter. If the bend is 20 centimeter from the pole of mirror, then ratio of the length of the images of the upright and horizontal portion of the wires will be equal to how much? अच्छा question है, फिर से एक बार आप लोग अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश करो and try to understand the question. I have got a small piece of a wire which is bent into what shape, beta? It is bent in the shape L of shape. your L shape with an upright and horizontal portion. तो अपने पास दो portions होते हैं basically इसके अंदर. तो एक तो L shape में लिख रहा हूं तो ऐसा होगा, एक axis पे lie करेगा और एक perpendicular to the axis lie करेगा. So horizontal portion along the axis of a concave mirror, radius of curvature is given for me in the problem 10 centimeter.
इट इज बेंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर से बेंड कितनी दूरी पे है बेटा, 20 सेंटीमीटर पर पे है। देन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द अपराइट एंड हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इतना लंबा क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आएगा नहीं, बट आप लोग के रफ नॉलेज के लिए हम लोग इस वजह से मॉडल्स को भी कर लेंगे, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन अपने नीक नहीं देता, बिकॉज द कैलकुलेशन शुड बी इन 3 और 4 लाइंस। अगर पेपर मान के चलो एक दो क्वेश्चन अगर टफनेस में आ रहे हैं, तो अगर ऐसा वाला लेंथी क्वेश्चन दे दिया तो भी हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक अपने को थोड़ा बहुत लेंथी कैलकुलेशन चाहते हैं, जहां पर बाकी के 35 टू 40 क्वेश्चन डायरेक्ट बेस क्वेश्चन होते हैं। एनीहाउ हम लोग पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। ये मेरे पास एक मिरर है, क्या बोला देखते हैं, कौन सा मिरर बेटा है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव। और ये हो गया मेरे पास इसका एक्सिस, और ये जो एल शेप है बेसिकली, तो यहाँ पर एल शेप ऑफ योर ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा गया, ठीक है ना। ये जो बेंड है ना, ये बेंड फ्रॉम द पोल कितनी दूरी पे बोला, the 20 bend, centimeter from this pole. 20 if the bend centimeter. is 20 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो ये हो गया मेरे पास 20 सेंटीमीटर, और ये हो गया पोल, और इसका ये हो गया लेंथ मान के चलो एल, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दूरी पे है बेटा, objective distance is at a distance of minus 20 centimeter, because all the distances are to be measured from the mole. Focal length will be, no doubt it will be negative, so it is minus 5 centimeter. तो इसका इमेज कहाँ पर गिरेगा पहले ये बताओ। तो इसका इमेज कैसा बनाओगे बेटा, मेरे पास 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f, ठीक है ना। So this will be equal to 1 by v plus this is minus of your 20, that is equals to 1 by your minus of your 5। तो ये हो जाएगा 1 by v that is equals to minus 1 by 5 as it is रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इधर चले जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। So this will become for me 1 by 20। तो अब इसका इमेज कितना बनेगा बेटा बताओ, तो 1 by v is equals to your एलसीएम कितना बनेगा बेटा इसका 20, और ये कितना बन जाएगा बेटा, कितना बनेगा जल्दी से बताओ, -3 सर। -3, वेरी गुड। तो ये हो गया माइनस ऑफ योर 3 पार्टिफिकेशन, यानी v कितना बना, v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ योर 20/3 सेंटीमीटर। सो ये हो गया इसका इमेज। इसका इमेज कितना बन रहा है, नेगेटिव, यानी अगर ऊपर है तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है अपने को भी, नीचे बनेगा बेसिकली, दैट्स राइट। देन राइट नाउ फॉर दिस वन, हाइट ऑफ इमेज भी दे रखा है मेरे पास, कितना दे रखा है बेटा, हाइट ऑफ द इमेज इज नथिंग बट फॉर मी एल। तो मैं इसका मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूँ, height of your image divided by your height of your object is equals to your minus of your v by u, isn't it? So height of image कितना बनेगा बेटा, height of image is equals to your height of your object into your v by u, और यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है एल, इमेज कितना है मेरे पास -20 डिवाइडेड बाई 3, ऑब्जेक्ट कितना है मेरे पास -20, तो ये 20 चले जाएगा, तो हाइट ऑफ योर इमेज कितना आया बेटा, माइनस ऑफ योर l/3। तो ये हो गया मेरे पास हाइट ऑफ योर इमेज। 100% ऐसा वाला क्वेश्चन मेंस में सॉरी नीट में नहीं आएगा, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन वो देगा ही नहीं। लेकिन अब जैसे अपने मटेरियल में होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं करना नहीं करना, तो जहां तक मेरा आइडिया है मैं तो मान के चल रहा हूँ कि ऐसा वाला क्वेश्चन बिल्कुल वेस्ट है, खाली आप लोग अपना साइन कन्वेंशन और कैलकुलेशन परफेक्ट करने के लिए मॉडल्स करना है। लेकिन नीट जैसे एग्जामिनेशन में हॉल में इतने लंबे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम है फिलहाल के कंडीशन में, तो हाईली इम्पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा लास्ट ईयर के सरकारी 2-2, 3-3 लाइन के होंगे और प्योरली फॉर्मूले बेस्ड पे ही होंगे बेसिकली, ये बात अपने को दिमाग में याद रख के चलो। चलो नेक्स्ट वन और एक पार्ट में चलते हैं बेसिकली। तो दूसरा वाला जो है बेसिकली ये वाला मिरर पे है। अब दूसरा वाला कंडीशन क्या है बेटा, कौन सा वाला इमेज है, अभी जो इमेज है ना दैट इज एन इमेज व्हिच इज बीन लाइंग ऑन द एक्सिस लाइक दिस। तो इसका भी लेंथ कितना दे रखा है बेसिकली, मान के चलो ऑफ योर एल। तो इसका भी डिस्टेंस कितना है बेसिकली, यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस कितना मान के चल रहा हूँ मैं, मान के चलो 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो दिस ऑब्जेक्ट इज ऑन द एक्सिस, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, lateral magnification का फॉर्मूला लगाएंगे, ml is equals to your how much for me बेटा, dv by your du, that is equals to minus of your f by your u minus of your f whole square। तो एक तो प्लस पॉइंट है कि ऐसे वाले क्वेश्चंस करने में क्या होता है कि फॉर्मुलेस आपके रटे हुए होते हैं बेसिकली, तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस में या रिकलेक्शन में आपको आसानी हो जाएगी, दैट इज ओनली द प्लस पॉइंट विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ योर 5 डिवाइडेड बाय योर, ये हो गया -20, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस ऑफ योर 5, ये हो गया होल स्क्वायर।
तो ये कितना बन रहा है देखो बेसिकली, इसमें नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस दिस विल बिकम फॉर मी प्लस, तो ये हो जाएगा कितना 25। सो 20 माइनस ऑफ योर, ये कितना है माइनस माइनस से प्लस, सो माइनस 20 प्लस 5 3 कितना बनेगा, whole square. 1/3 whole square. कितना 1 बाई 3 whole square. स्क्वायर में 3 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/9, ठीक है ना। Yes, sir. सो dv बाई du की वैल्यू आई कितनी माइनस और 1/9। dv इज नथिंग बट व्हाट बेटा, हाइट ऑफ योर इमेज, हाइट ऑफ योर ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है el, सो दैट इज इक्वल टू 1/9। सो हाइट ऑफ इमेज ऑन द हॉरिजॉन्टल जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, ये मैं ले लेता हूँ और 2 के लिए ये बन जाएगा l/9, ठीक है ना। प्रीवियस वाला ये जो लिख रहा हूँ ना hi, ये मान के चल रहा हूँ फर्स्ट वन के लिए। तो पूछ के आ रहा है बेसिकली रेशियो पूछ रहा है ना इसका, तो रेशियो Yes, कितना sir. हो जाएगा जल्दी से बताओ। इसका रेशियो विल बी इक्वल टू योर हाउ मच फॉर मी बेटा, कितना आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज ऑफ योर 1 डिवाइडेड बाय योर हाइट ऑफ योर इमेज ऑफ योर 2। हाइट ऑफ इमेज ऑफ 1 कितना था बेटा मेरे पास, कितना आया था माइनस ऑफ योर l/3, L/3. और ये कितना आ गया था माइनस ऑफ योर l/9, ये माइनस ही होगा। तो ये क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बेटा इसमें, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा, तो माइनस माइनस भी चले जाएगा, सो दिस विल बिकम फॉर हाउ मच फॉर मी 3/1। तो रेशियो आ गया कितना 3/1 पार्टिकल। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3:1, 3:1 विल बी द आंसर। क्लियर है। Yes, sir. चलो 56 वाला देखो बेटा, a cube of height 2 centimeter is being placed in front of a concave mirror of focal length 1 meter with its face, बेटा म्यूट हो जाओ, आपकी वॉइस बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। A cube of height 2 meter is being placed in front of a concave mirror of focal length 1 meter, ठीक है। So that is of your 1 meter with its face P, with its face P at a distance of 3 centimeter and face Q, ये हो गया face Q at a distance of 5 centimeter from the mirror. Okay, very good. The distance between the image of the PQ and the height of the image of P and QR is equals to how much? ये भी लेंथी वाला क्वेश्चन है, बट अपने को आइडिया होना चाहिए फॉर्मलेस, बस ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी का सब कैलकुलेशन से। और ये फिर से लंबा क्वेश्चन है, 99% फिर से ये नीट वाले वैसे एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन अपने को मॉडल याद होना चाहिए, करने की ताकत होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग एक बार इसको कर लेंगे। ये हो गया मेरे पास कॉनकेव मिरर, तो दिस इज सिल्वर। तो देखो एक तो प्रॉब्लम क्या है ऐसे वाले प्रॉब्लम्स में कि प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होती है, लेकिन अपना प्रैक्टिस बढ़ता है कि जितनी बार आप डायग्राम ड्रॉ करते रहोगे, जितनी बार आप साइन कन्वेंशन पढ़ते रहोगे, तो आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी और आपका एनालाइज बढ़ते रहेगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। बस आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए मैं फिर से एक बार डायग्राम ऐसे ड्रॉ करते चले जा रहा हूँ। अगर मुझे प्रॉब्लम करना होता तो मैं थोड़ी कैलकुलेशन दिमाग में ही करता, जहां पर अपने को टाइम कम से कम हो जाए। तो यहाँ पर देखो ये वाला ऊपर वाला लेंथ दे रखा है मेरे पास 2 मीटर, तो पहले वाला मैं दे रहा हूँ इस तरह से, तो ये हो गया P, और इसका लेंथ कितना है बेटा 2 मीटर्स, और ये कितनी दूरी पे बोला है फ्रॉम द मिरर 3 मीटर्स। तो लीनियर के लिए तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखो 1/v प्लस ऑफ योर 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/f. परपेंडिकुलर जब था, तो ये हो गया मेरे पास 1/v, that will be equal to how much बेटा, ये 1/v प्लस ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस कितनी दूरी पे बेटा, दिस इज माइनस ऑफ योर 3, that is equals to your minus of your 1। तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/v दैट इज इक्वल्स टू -1, तो ये बन जाएगा 1/3। 1 + 1/3 कितना बन जाएगा 2/3। एलसीएम भी फास्ट फास्ट हो जाएगा अपने को यहाँ पर, तो इसमें यही प्लस पॉइंट है। सो v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ योर 3/2 मीटर। ये हो गया मेरा इमेज वर्टिकल के लिए। तो अब हाइट ऑफ इमेज मेरे को मालूम है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे मालूम है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ योर v/u। तो हाइट ऑफ इमेज निकालना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उधर रखा है 2 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू इमेज कितना है मेरे पास, ये हो गया मेरे पास माइनस ऑफ योर 3/2, और ऑब्जेक्ट कितना है मेरे पास -3। तो ये बना कितना बेटा, कोई बता सकता है, ये 3 तो कट जाएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो बचा कितना मेरे पास, ये माइनस है कितना है बेसिकली, 1/2. ये माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक माइनस है बेसिकली, माइनस माइनस Cancel. प्लस से एक माइनस है, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो माइनस ऑफ 2/2 बन जाएगा, तो ये हो गया -1 मीटर। ठीक है, Yes, sir. ये किसके लिए था, एपी के लिए था। अभी क्यू के लिए देखो बेटा, क्यू कहाँ पर है मेरे पास, ये वाला। सो ये क्यू जो है ना बेसिकली कितने डिस्टेंस पे है राइट नाउ, ये 3 है, ये 2 है, 3 + 2 दैट विल बी इक्वल टू योर 5, एंड द पी क्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच राइट नाउ, ये हो गया मेरे पास क्यू। ये कहाँ पर है, नीचे है, देखो एक बार जल्दी से अच्छी तरह से देखो बेसिकली, ये जो पी क्यू है ना, द पी क्यू का वैल्यू जो है ना, दिस इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। Yes, sir. जरा
Yes, देखो sir. the distance, the questions में एक बार देख लो बेटा. A cube of face, cube of side 2 meter is being placed in front of a concave mirror of focal length 1 meter with the face P, at a distance of your 3 meter from the 3 meters, and face Q, ये face Q जो है ना, at a distance of 5 meter from the mirror. The distance between the image, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा राइट नाउ प्रिंसिपल एक्सिस से, देखो कितनी दूरी पे पड़ रहा है, कितनी दूरी पे पड़ेगा बेटा, कोई बता सकता है, जल्दी से बोलो. Needs distance. ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से है बेटा, मैं आपको डायग्राम एक बार बताता है. ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर है, यानी ये इसके नीचे है. नीचे मतलब यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिख दूं, तो फॉर यूर क्यू अगर मैं लिख रहा हूँ, फिर से मैं मिरर ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये हो गया मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया क्यू प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और ये कितना है बेटा 2 मीटर से, और यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा 5 मीटर. ठीक है ना, तो ये हो गया इसका पोल. तो इसके लिए भी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, मिरर फॉर्मूला. तो ये हो Yes, जाएगा sir. मेरे पास 1/v प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बेटा -5, दैट इज इक्वल्स टू -1 फोकल लेंथ. सो 1/v विल बी इक्वल टू, और -1 हो जाएगा ये प्लस 1/5, -1 प्लस 5 विल बिकम हाउ मच, विल बी माइनस ऑफ 4/5. तो v कितना बना बेटा, v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5/4 मीटर. तो ये हो गया इमेज इसका, क्लियर है. देन हाइट ऑफ योर इमेज, height of your image for this cube divided by your height of your object of your cube is equals to your minus of your v by your u. ठीक है ना. height of your object for your cube कितना है, height of your image for your cube will be equal to your minus of height of your object of your cube into your v by u लिख सकता हूँ मैं बेसिकली. तो Yes, height sir. of your object कितना दे रखा है बेटा, this will be equal to your 2 -2 meter. यहाँ पर लिखता हूँ, Minus. into ये तो माइनस है ना, तो माइनस ऑफ 2, Yes, sir. v will be equal to minus of 5/4, और ये हो गया minus of 5. तो कितना बन जाएगा बेटा, ये 5 तो चले गया, 4 नीचे आ गया, 2 1 this is your 2 2 so height of your image of your Q will be equal to how much बेटा, ये माइनस माइनस भी चले जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, that will become for me. -2. So that will be equal how much for me बेटा, height of image by your height of your object कितना होगा, -2. -2 क्यों आएगा, देखो बेटा 1/2. 1/2 आएगा, प्लस 1/2 आएगा ना Yes, बेटा, sir. क्योंकि 1/2. यहाँ पर का माइनस था Ma- ना, तो ये माइनस यहाँ पर चलेगा, इसका माइनस चलेगा, ये माइनस प्लस हो गया ना. तो 1/2 yes, sir. मीटर मतलब कितना हो गया, 0.50 मीटर समथिंग. ठीक है, चलो अभी क्या पूछ रहा है बेसिकली, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, तो पूछा रहा था कि द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ द फेस P एंड Q आ गया, हाइट ऑफ द इमेजेस ऑफ योर P एंड Q. हाइट ऑफ द इमेज तो मेरे पास मालूम है, एक तो हाइट ऑफ द इमेज कितना आया बेटा, एक का तो हाइट आया 1 मीटर, और एक का हाइट आ गया 1/2. सो डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस कितना आ जाएगा, ये बताओ. डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस ऑफ योर P एंड Q, तो कितना बनेगा बेटा, ये बन जाएगा मेरे को 3/2 माइनस ऑफ योर 5/4, होता है ना. Yes, sir. तो कितना बनेगा ये बताओ जल्दी से, 3/2 माइनस 5/4, 1/4. पक्का. Yes, sir. 1/4 मतलब कितना, 0. 0.25 मीटर्स. So 5. क्लियर है. Yes, sir. चलो, हाँ, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस हो गए. उसके बाद और एक देखो, राइट नाउ दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. स्क्वायर वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज बीन प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of focal length of 10 centimeter with the center on the axis of mirror, and its plane is normal to the axis. The area enclosed by the image of the mirror will be equal to, और how much. अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है बेटा, अपने को यहाँ पर एरिया पूछ रहा है, Area. आस्किंग अबाउट योर एरिया. वेरी गुड क्वेश्चन. सो अगर मुझे ऐसे वाले क्वेश्चन करना है, देखो अपने को यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 49. तो देखो स्क्वायर वायर ऑफ कितना बेटा, 3 सेंटीमीटर इज बीन प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ योर कॉनकेव मिरर. तो मिरर कौन सा है मेरे पास, फिर से कॉनकेव मिरर है.
ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल हो गया और इसका फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा। और उसने क्या बोला कि स्क्वायर वायर ऑफ साइड कितना 3 सेंटीमीटर इज बीन प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ योर कॉनकेव मिरर। यानी एक स्क्वायर वायर है मेरे पास, स्क्वायर का एक वायर है इस तरह से, ठीक है। और ये कितनी दूरी पे है बेटा, कितनी दूरी पे है 25 सेंटीमीटर, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। और इसका लेंथ कितना दे रखा है बेटा, वायर का साइड कितना दे 3 रखा है, सेंटीमीटर। ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, स्क्वायर है ना बेटा इसीलिए। फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये बात याद रख लो बेसिकली। तो उसके बाद उसने क्या बोला, विथ इट्स सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द मिरर एंड इट्स प्लेन इज नॉर्मल टू द एक्सिस, the area enclosed by the image will be equal to how much। तो पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है तो 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f। ये हो गया 1 by v plus object distance will be equal to minus 25, that will be equal to minus of your 10। तो ये बन जाएगा 1 by v is equals to minus of your 1 by 2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इधर आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा, that will be equal to 25। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, दिस एलसीएम will be equal to 50, so this will become for me -5, this will be +2। तो ये बना कितना -3 divided by your 50, तो ये हो गया मेरे पास 1 by v। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस ऑफ योर 50 by 3 सेंटीमीटर। तो इसका इमेज कहां पर गिर रहा है, माइनस ऑफ योर 50 बाई। तो अपने को अभी मैग्निफिकेशन को फॉर्मूला मालूम है, m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यूर v बाई यूर u, ये हो जाएगा माइनस, तो इमेज डिस्टेंस कितना है माइनस ऑफ 50 बाई 3 डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट कितना है माइनस ऑफ 25। ये बना कितना देखो जल्दी से, 25 1 जा 25 2 जा, तो ये हो गया माइनस ऑफ 2 बाई 3। तो एरिया कैसे निकालोगे बेटा, एरिया ऑफ योर इमेज, area of your image divided by your area of your object, area will be equal to how much beta, length into breadth। Yes sir। so इसका length और इसका breadth same है, that means Yes, height of your image into height of your object divided by height of your image into height of your object। तो ये बनेगा दोनों भी सेम है, तो ये बन जाएगा हाइट ऑफ योर इमेज होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर हाइट ऑफ योर ऑब्जेक्ट होल स्क्वायर, यानी ये कितना बन जाएगा मैग्निफिकेशन का स्क्वायर बन जाएगा। तो एरिया ऑफ योर इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ योर ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ योर 2/3 का होल स्क्वायर। सो एरिया ऑफ योर इमेज, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बनेगा बेटा 3 into 3 लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, that will be equal to how much beta, minus minus will be minus a square plus बन जाएगा, 2 square will be 4, 3 square will become for me 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये पूरा कट गया। तो एरिया ऑफ योर इमेज कितना बन गया बेटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया आंसर? यस सर। ऐसे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं बेसिकली बेटा, ये छोटा ही है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट वन को चलते हैं जल्दी से। ये देखो बेटा, a car is been fitted with a convex side view mirror of focal length 20 centimeter. A second car 2.8 meter behind the first car is overtaking the first car at a relative speed of 15 meter per second. The speed of the image of the second car as seen in the mirror of the first one will be equal to how much? ये अपने को मालूम होना चाहिए, ऐसे वाले फॉर्मूले से अपने को velocity of your image with respect to your object। मैंने आप लोग को लिखवाया भी था, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ दिस विल बी इक्वल टू योर एफ डिवाइडेड बाय योर यू माइनस ऑफ योर एफ होल स्क्वायर। अगर फॉर्मूला याद नहीं आया मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ के भी बेकार है। वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ए कॉनकेव मिरर, मतलब चट बोल के आपको आंसर देना है, क्योंकि एग्जामिनेशन आपको लिखना है, तो फॉर्मूला रिपीटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं आपको 3 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट ले रहे हो ऐसे वाले क्वेश्चन करने के लिए, मतलब आपका प्रिपरेशन अभी सही ढंग पे नहीं है। तो मेक श्योर दैट आपके फॉर्मूलेस खटाखट आपके हाथ में होना चाहिए। अब ऐसा मत सोचिए एग्जामिनेशन हॉल में मैं बैठूंगा डिराइव कर लूंगा, फिर विल ट्राई टू डिराइव देयर एंड डू, मतलब बाजू वाला सेट लेके चले जाएगा। तो हम लोग को कॉनकेव मिरर का वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर द प्लेन मिरर का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो अच्छी बात है, गो एंड अगेन स्लीप, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या क्या दे रखा है प्रॉब्लम में, देखो ए कार इज बीन फिटेड विद अ कॉन्वेक्स साइड मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा कितना मीटर बेटा 0.2 मीटर डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे दे रखा है बेटा, सेकंड कार इज नथिंग बट 2.8 मीटर बिहाइंड द फर्स्ट कार, यानी दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2.8। clear है? This will be equal to your minus, and focal length will be equal to how much beta? What type of a mirror it is here is using beta? What type of a mirror he is using? Convex. Convex.
इसके लिए फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, यानी ये हो जाएगा 0.2, ये हो गया होल स्क्वायर। बस काफी बात है। तो कितना हो रहा देखो जल्दी से कर लो। Yes. Sir, minus 1/15 whole square. वेरी गुड, उतना ही ना बेटा, क्योंकि ये -2.8 है, ये -2.8 प्लस 0.8 कितना बनेगा? 2.8 प्लस 3.0, सो 0. डिवाइडेड बाय योर 3.0, तो कितना आ जाएगा बेटा? 2/30, यानी मल्टीपल बी इक्वल Yes. टू मच फॉर मी 1/15. -of your 1/15 whole Whole square. square. That will be your answer. So it will be your minus of your 1/15 whole square. ये जो आया मेरे को, ये क्या है बेटा? This one is right now for me what? Velocity. Velocity of image with respect to Respect your to object. velocity of object. तो velocity of image निकालना है अपने को, velocity of object ने दे रखा है ऑलरेडी प्रॉब्लम में कितना? 15, that is equals to minus of this one is your 1/15 into 1/15. ठीक है, तो इसमें कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है क्या? ये वाला कट गया, तो velocity of image कितना आया बेटा? minus of 1/15. क्लियर है? Yes, यूनिट sir. पर सेकंड, ये आ गया आंसर। क्लियर है? Yes, sir. चलो वेरी गुड। 62. An object is moving towards a concave mirror of focal length 24 centimeter. When it is at a distance of 60 centimeter from the mirror, its velocity is 9 centimeter per second. The speed of its image in at that instant will be equal to your how much? ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसको यहीं पर कर देता हूँ मैं बेसिकली फिर से एक बार जल्दी से। क्या फॉर्मूला बटेगा बेटा मिरर के लिए? velocity of image divided by velocity of object, that is equals to minus of f divided by u minus of your f whole square. ठीक है ना? So that is equals to क्या क्या दे रखा देखो प्रॉब्लम में, an object is moving towards a concave mirror. अभी कौन सा मिरर है? concave mirror है। focal length कितना है? 24 सेंटीमीटर। 24 centimeter. साइन कन्वेंशन अपने को लगाना है यहाँ पर क्लियर। Minus. तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 24, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बेटा? डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। 60. तो ये हो गया माइनस ऑफ योर 60, ये हो गया माइनस, दिस इज योर माइनस ऑफ 24, तो ये बन गया होल स्क्वायर इसका। तो ये बना कितना बेटा? ये देखो जल्दी से, माइनस ऑफ योर, ये हो गया -24 डिवाइडेड बाय -60 प्लस 24 कितना बनेगा? -36. -36, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस प्लस बनेगा ना बेटा। So 60 minus of your 24, this will become for my minus of your 36, ये होगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. कट रहा है क्या देखो, ये माइनस चले गया, किसी में कट रहा है क्या? Sir, 4/9. Yeah, so this will become for me how much? 4/9, 2/3 whole square. Yes. so 4/9, ठीक है ना? Yes, sir. चलो, तो ये हो गया मेरे पास velocity of image divided by velocity of object. Velocity of object कितना दे रखा है? Object is moving towards a concave mirror so and so with a velocity of how much for me? 9 centimeter per second. तो ये हो जाएगा velocity of image divided by, तो ये हो जाएगा 9, that is equals to minus of 4/9. तो ये now कट गया, तो velocity of image will be equal to minus of your 4 centimeter per second, है कि नहीं? Yes, sir. So negative sign indicates what बेटा? Negative sign क्या बता? Downward. It Image is is moving towards the mirror. It is inward. moving towards the mirror, and that means image will move away from the Mirror. Yes, sir. mirror. It Away will be from the moving mirror. away from the mirror. Clear है सभी को? Yes, sir. So what will be the answer for this one? 4 centimeter away from the mirror. Mirror. ठीक है ना? चलो, Yes, very sir. good. Next one, 51 देखो बेटा जल्दी से. A concave mirror forms on a screen. A concave mirror forms on a screen a real image of thrice the linear dimensions of the object. Object and screen are being moved until the image is twice the size of the object. If the shift of the object is 6 centimeters, the focal length of the mirror will be equal to your how much? Very good and very important model. सोचने वाला क्वेश्चन है, अगेन लेंथी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अपने को रखना याद रखना जरूरी है कि हाउ डू यू डू द अप्रोच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। बस अपने को मेथड बताते जाओ और मुझे बताओ कि प्रॉब्लम में डाटा आप लोग क्या समझ में आया। मेरे पास क्या मिरर है बेटा? कॉनकेव मिरर है विच फॉर्म्स ऑन ए स्क्रीन ए रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, ये रियल इमेज फॉर्म कर रहा है और इट इज ट्राइस द लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन है मेरे पास 3 टाइम्स है। ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर बीन मूव्ड अंटिल द इमेज इज बिकमिंग हाउ मच बेटा? Twice. Object is becoming twice the size. That means image is becoming twice the size of the object. If the shift of the object is 6 centimeters, what will be the focal length of your mirror? तो क्या दे रखा है? स्क्रीन में कौन सा इमेज बन रहा है बेटा? रियल इमेज बन Real रहा है। image.
सो रियल इमेज मतलब क्या, ऑन द सेम साइड क्या अनदर साइड? On the another. हाँ, Say, कौन सा मिरर है ये? कौन सा मिरर? concave. कॉनकेव मिरर है। अब ये कॉनकेव मिरर है ना बेटा। Yes, तो sir. अगर यहाँ Concave. पर मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो ये मेरा सिल्वरिंग होगा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा। Same side. सो अगर इमेज अपने को यहाँ पर कहीं पर मैंने स्क्रीन रखा तो इसका इमेज यहाँ पर सेम 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 Yes, साइड पे sir. गिर रहा है, Same जहाँ side. पर ऑब्जेक्ट है वहां पर इमेज है। तो जहां पर ऑब्जेक्ट वहां पर इमेज, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि रियल है कि वर्चुअल? Real. इट विल बी रियल। अगर बाहर पड़ता तो उसको हम लोग वर्चुअल बोलते। Yes, sir. तो मैग्निफिकेशन कितना हुआ? m इज इक्वल्स टू कितना, थ्राइस बोला है तो Thrice, मैग्निफिकेशन yes. -3। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्वियसली विल बी -6, तो ये हो गया माइनस ऑफ योर p, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया फ्रॉम दिस वन माइनस। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मुझे मालूम है, m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाय u। मैग्निफिकेशन है -3, दिस इज माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ योर x। तो v बना कितना बेटा, माइनस ऑफ योर 3 टाइम्स ऑफ x। Yes, sir. ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल्स टू 1 बाय f। 1 by v कितना है बेटा, दिस इज माइनस ऑफ योर 3 into x प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू -6, दैट विल बी इक्वल टू योर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना दे रखा है बेटा मेरे पास, 1 by f। पॉजिटिव की नेगेटिव? Negative. दैट विल बी योर नेगेटिव। ठीक है ना? Yes, sir. सो 1 by फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, ऑब्वियसली अपने को आंसर नेगेटिव में ही आ जाएगा। तो ये देख लो कितना आ रहा, 1 by योर f। तो ये कितना आ रहा देखो बेटा, प्लस माइनस माइनस, सो इट इज 1 by 3x माइनस 1 by x। तो कितना बनेगा देखो, 1 by f will be equal to 1 by -3 minus 1 by 1। 1 by 3 minus 1 कितना होगा? Sir, -4/3x. या माइनस ऑफ 4 by 3 टाइम्स ऑफ योर x। 1 by 3 माइनस 1 है ना बेटा। तो फोकल लेंथ कितना मेरा बेटा, f will be equal to how much, f will be equal to, चलो इसको फोकल लेंथ में ही लिख 3x देता हूँ minus. बेसिकली। सो दिस विल बी इक्वल टू योर माइनस ऑफ योर 3 into your x। उसके बाद अपने को निकालना क्या है, साइज ऑफ द इमेज इज डिक्रीज्ड, कितने में डिक्रीज हो गया अभी? 2 times size of 2 object. टाइम्स, तो सेम साइड है तो -2 होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ योर ऑलरेडी x पे है, तो ये कितना दे रखा है प्रॉब्लम में, 6 सेंटीमीटर। तो इमेज कितनी दूरी पे पड़ेगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ योर 2 टाइम्स ऑफ योर x प्लस ऑफ योर 6। क्लियर है? Yes, sir. मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है ना, अभी ये तो 2 टाइम्स बनेगा मैग्निफिकेशन, फिर से मैंने स्टेप नहीं लिखा है यहाँ पर। तो 1 by f will be equal to 1 by b plus 1 by u। क्लियर है? so that will be equal to 1 by, this is minus of 2, this is x plus of your 6, this will be equal to your plus, this will be minus of your, this will be equal to your x plus 6। so this is your focal length f, isn't it? ये कितना बनेगा देखो, 1 by your f is equals to 1 by minus of your 2 into your, ये हो गया मेरे पास 2 into your x plus of your 6 plus minus minus 1 by your x plus 6। 1 by x plus 6 को कॉमन ले लो, isn't it? तो it is 1 by 2 minus ये minus 1 by 2 minus 1 कितना हो जाएगा? minus 1 by 2 minus 1 कितना होगा? -3 by 2। Yes, sir. so this will be minus of your 3 by 2 into your, ये हो गया x plus 6 यहाँ पर as it is, ये हो गया 1 by f, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। और इससे पहले का जो आया था मेरे पास पर इक्वेशन कहाँ गया F equal ये to जो था minus 3x by. इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना? अब दोनों को इक्वेट कर लो, तो ये बना कितना, माइनस ऑफ योर 4 by 3x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ योर 3 by 2 into योर x plus 6। ठीक है ना? तो अब ये बन रहा कितना देखो जल्दी से, 4 2 is 8, so this will be your 8 into your x plus 6। a minus चला गया, so this will be equal to 3 3 is 9x। so ये कितना बनेगा बेटा, 48 plus 8x. हाँ 48 plus 8x, sir. 48 प्लस कितना 8x. इज इक्वल्स टू 8x। इसको लिख लेता हूँ बेटा, 8 into x प्लस 8 6 48. 8.
ये हो गया 9x minus 8x कितना हो गया, x हो गया, X तो x equal will to be 40 equal to your minus 48. 48. x is equals to 48 सेंटीमीटर. तो अब इसको फोकल लेंथ निकालो, कितना बन रहा है, 1/f will be equal to minus of 4/3 into x. x की वैल्यू कितनी आ गई, 48. ठीक है ना. Yes, sir. तो ये बना कितना है मेरे पास, देखो जल्दी से. फोकल लेंथ कितना आ रहा, -36. Yes, sir. Yes, sir. 4 1s are, this is 4 12s are, Yes, sir. Minus 36. -36. So focal length will be equal to -36 centimeters. तो ये हो जाएगा -36 centimeters. थर्ड ऑप्शन will be the answer. Yes, ठीक sir. है. Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन. The sun subtends an angle half a degree at the pole of the concave mirror, which has a radius of curvature 15 centimeter. Then the size of the image of the sun formed by the concave mirror will be equal to how much? यानी ये मेरा पास कॉनकेव मिरर है और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस और ये सिल्वर ऑन द आउटर साइड और ये हो गया मेरे पास पोल. रे ऑफ लाइट कहां से आ रहे हैं बेटा, सन. सन कहां पर है, इनफाइनाइट पे है. तो रे ऑफ लाइट फ्रॉम द इनफाइनाइट पे से आके पोल पे गिर रहे हैं इस तरह से. आपको मालूम है अगर पोल पे गिर रहे हैं तो जितने एंगल पे गिरेगा उतने एंगल पे वापस जाएगा. Reflect. तो ये एंगल बना रहा है थीटा, तो ये भी एंगल बनाएगा थीटा. तो अब तो सन इंफिनिटी पे है तो इसका इमेज यहाँ पर ही कहीं पर गिरेगा. अगर मैं कहीं पर इसका मिरर रख लूं तो इसका इमेज यहाँ पर कहीं पर गिरेगा. तो इसका डायामीटर बनेगा कितना बेटा, ये पूरा इसका डायामीटर हो जाएगा d. और ये मेरे पास पूरा क्या है, दिस वन इज राइट नाउ फॉर मी सन. सन का इमेज फॉर्म हो गया मेरे. इज इट क्लियर? इज इट? Yes, sir. अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो अपने को मालूम है इमेज कहाँ बनेगा, चार मीनार पे, है कि नहीं. Okay. Yes, sir. चार मीनार पे गिरेगा ना, Focus. फोकल लेंथ पे गिरेगा. मैंने चार मीनार इसलिए बोला कि मैं खिड़की के सामने बैठ के देखता हूँ तो पूरा चार मीनार दिखता हूँ, इसीलिए मैंने यूज कर दिया. तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पर बनेगा, इंफिनिटी पे Focus. पर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकल Focus. लेंथ पे बनेगा. थीटा अपने को डिग्रीज में दे रखा है, देखो क्या बोला है, द सम सबटेंस एन एंगल हाफ ए डिग्री एट द पोल. यानी थीटा कितना है बेटा, थीटा की वैल्यू दे रखा है हाफ डिग्री. डिग्री को मैं रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो मुझे मालूम है 360 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस. Yes. ठीक है ना. तो अब मैं इसको क्या करूंगा, अगर मुझे डिग्रीज में कन्वर्ट, डिग्रीज दे रखा है, अगर इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो ये कितना बन जाएगा बेटा, ये हो गया मेरे पास हाफ डिग्री डिवाइडेड बाय ये कितना बन जाएगा बेटा, जल्दी से बताओ. दिस विल बी योर 180 इनटू योर पाई. ठीक है ना. तो ये कितना बना, दिस विल बिकम फॉर मी हाउ मच, पाई बाय 360 रेडियंस. Yes, sir. इज इट? यहां से भी निकाल सकते थे, हाफ डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस, सो दैट विल बी पाई बाय 360 रेडियंस. ये हो गया मेरे पास थीटा. सो इमेज फॉर्म्ड बाय दिस वन विल बी इक्वल टू हाउ मच राइट नाउ बेटा. यहां पर से देखो अगर ये मैं एंगल ले रहा हूं तो ये क्या tan थीटा बनेगा मुझे पूरा. Yes, sir. तो tan थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, tan थीटा विल बी इक्वल टू दिस d डिवाइडेड बाय योर f. थीटा बहुत स्मॉल है, हाफ डिग्री, तो tan थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटेड टू व्हाट, थीटा. Yes, sir. तो ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू d बाय योर f. तो पूछ रहा D क्या by है, 2 आना ना सर. d बाय Sir, 2 D क्यों, by- एक ट्रायंगल का ले रहे ना बस. क्या बोले. Above. नहीं नहीं, ये पूरा लेंगे हम लोग, ये पूरी एंगल बना के लेंगे, क्योंकि ये जो इमेज बन रहा है बेसिकली ये टोटल एंगल के साथ बन रहा है. चलो हाँ, टू 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 थीटा लिया ना मैंने. थीटा है ना. हाँ Yes. तो ये 2 थीटा बन जाएगा, तो इसको हम लोग एक ही थीटा ले लो. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आ जाएगा. या वरना मुझे यहाँ पर 2 थीटा लिखना पड़ता, टाइम 2 थीटा Yes, लिखना sir. पड़ता. ठीक है ना. चलो थीटा इज इक्वल्स टू d बाई f. सो d कितना बन जाएगा बेटा, थीटा इनटू योर f. ये हो गया डायमीटर ऑफ दिस. Yes, sir. ठीक है ना. तो ये हो Yes. गया डायमीटर, तो डायमीटर हो गया थीटा. थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 360 आ गई. और फोकल लेंथ कितना दे रखा है बेटा, फोकल लेंथ कितना दे रखा है प्रॉब्लम में, 15. रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है. रेडियस ऑफ 7 by कर्वेचर 7.5. सो r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ f. तो f हो 7.5. जाएगा मेरे पास 15/2 यानी 7.5. तो ये बन जाएगा मेरे पास 7.5 का वैल्यू. तो पाई की वैल्यू मुझे मालूम है 3.14 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई योर 360. अब ये जो भी कैलकुलेशन आ रहा है ये कर लो. ठीक है. Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन देखो, ये हो गया बेसिकली. वेरी गुड. अब ये देखो बेटा, ये रिफ्रैक्शन का प्रॉब्लम है. ए लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज with the normal
टू ए 2 सेंटीमीटर थिक प्लेट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2, फाइंड द शिफ्ट इन द पाथ ऑफ द लाइट एज इट एमर्जेस आउट ऑफ द प्लेट। किसी को फॉर्मूला याद है जल्दी से बताओ। लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद अ नॉर्मल टू ए 2 सेंटीमीटर थिक प्लेट, ऐसा वाला हम लोग ने करे थे, याद है? ये वाला अगर थिक प्लेट है, इसका अगर थिकनेस टी है, तो देर विल बी शिफ्ट इन द इमेज। अगर ये रे ऑफ लाइट इस तरह से गिर रहा है, ये नॉर्मल है, तो इट विल ट्राई टू बेंड लाइक दिस, और यहाँ से Yes, फिर ये sir. वापस जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा जा रहा है, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये शिफ्ट का फॉर्मूला आ रहा है। शिफ्ट का फॉर्मूला sir. मैंने आप लोग को बताया था, x इज इक्वल्स टू योर थिकनेस इनटू योर साइन ऑफ योर Sin. i माइनस ऑफ योर r डिवाइडेड बाय योर cos r। Cos R. Yes, sir. फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। तो ये बन गया मेरे पास x, तो ये एंगल कितनी है बेटा मेरे पास, यहाँ पर एंगल ऑफ योर इंसिडेंस कितनी दे रखा है मेरे पास, 45 डिग्रीज दे रखा है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा, और ये एंगल जो बनेगा दिस विल बिकम फॉर मी i माइनस ऑफ योर r। तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये एंगल यहाँ पर कितनी बन जाएगी, 90 डिग्रीज बन जाएगी। थिकनेस दे रखा है कितना मेरे पास प्रॉब्लम में, 2 सेंटीमीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है मेरे पास 2, ठीक है ना। तो अब ये बन जाएगा, देखो t इंटू योर, ये बन जाएगा मेरे पास साइन ऑफ योर i। पूछ क्या रहा है बेसिकली प्रॉब्लम में, Shift later. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी इसका फॉर्मूला है बेटा, अभी तो इसका प्रूफ नहीं कर सकते, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर t इंटू साइन आई, दिस विल बिकम फॉर मी 1 माइनस ऑफ योर कॉस इंटू योर आई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ योर म्यू स्क्वायर माइनस ऑफ योर साइन स्क्वायर इंटू आई। lateral displacement in terms of refractive index, lateral displacement in terms of what, the refractive index। ये दो फॉर्मूले से बेटा, ये angle of incidence में है, and this one is in terms of your refractive index, in terms of your refractive index में है। तो अब इसके वैल्यूज डाल के सिंप्लीफाई कर लो। थिकनेस तो मेरे पास मालूम है, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू साइन, ये हो गया मेरे पास 45 डिग्रीज इंटू 1 माइनस, ये हो जाएगा फिर से cos ऑफ 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा, ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर का 45 डिग्रीज। आई होप यू कैन डू दिस कैलकुलेशन बेटा। Yes, sir. सो 2 sin 45 कितना हो जाएगा, 1 बाई रूट 2 इंटू ये बन जाएगा 1 माइनस एक cos 45 कितना हो जाएगा बेटा, cos 45 कितना By होता है, root 2. By root 2. 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा कितना, साइन स्क्वायर के वैल्यू 1 बाई रूट 2 का होल By root स्क्वायर, 2 यानी whole 1 बाई 2, Yes, sir. isn't it? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आंसर आ रहा है दैट विल गिव मी द आंसर फॉर दिस। ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो बेटा इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप प्रूफ पे जाओगे तो अभी बेकार है, टाइम वेस्ट होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर कहीं नहीं आता है तो आपके कहीं पर भी बुक में जहां पर भी है वहीं पर एक बार लिख के रख लो, दैट विल बी हेल्पफुल। लैटरल डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताओ जल्दी से। A bulb is being placed at depth of 2 root 7 centimeter in the water, and a floating opaque disc is being placed over the bulb so that the bulb is not visible from the surface. What is the minimum diameter of the disc? ये मैंने आप लोग को क्लास में करवाया था, ऐसा वाला क्वेश्चन as it is, याद है कि नहीं है? Yes, sir. क्या फॉर्मूला हो जाएगा बता, कोई बता सकता है क्या? कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगेगा, क्रिटिकल एंगल का। Yes, यहाँ sir. पर मेरे पास ऑब्जेक्ट है और ये हो गया Sure. मेरा इसका डिस्टेंस, यहाँ से रे ऑफ लाइट इस तरह से यहाँ पर गिरेगी, ये इसका नॉर्मल होगा, ये यहाँ पर वापस चले जाएगी, तो फिर से ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर ऐसा गिरेगी, तो मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल अगर ये है तो रिफ्रैक्टेड रे ऐसा चले जाएगी, तो ये Yes. क्रिटिकल एंगल सी होगा, ये भी क्रिटिकल एंगल सी होगा। तो इसमें प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, दिस इज फॉर्मिंग ए कोन राइट नाउ लाइक दिस। एक ओपेक बॉडी है यहाँ पर, ओपेक बॉडी मतलब एक डिस्क जहां से रोशनी नहीं जा सकती। अगर इस पे रोशनी गिरे तो इसका पूरा शैडो कहाँ पर गिरेगा बेटा, ऊपर कहीं वॉल पे गिरेगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाटर में है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ये इसका रेडियस बन जाएगा बेटा, ये होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज नथिंग बट ऑफ योर आर। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और इसका हाइट दे रखा है कितना प्रॉब्लम में, फ्रॉम द डेप्थ कितने हाइट पे है, h इज इक्वल्स टू योर 2 इंटू रूट 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, r इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ योर Under root of स्क्वायर mu माइनस, square minus 1. minus 1. so it is 2 into root 7 divided by under root of your, ये हो गया मेरे पास 4/3 होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये बन जाएगा 2 into root 7 divided by under root of your 4 square is 16, 3 square is 9 minus 1। तो ये बना कितना देखो जल्दी से, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 into root 7 divided by, ये कितने में जाएगा,
√7/3. कैसा? 6. 16/9 -1 √9 में है तो 3 बाहर आ जाएगा. So this will Yes, be sir. equal to how much for me बेटा? 16 मतलब 4 7%. भी बाहर आ सकता है ना सर? ये रूट में है ना बेटा, इसको रूट में कर लेते हैं ना, तो √7 आ जाएगा. हाँ, सो दिस विल बिकम फॉर मी √7. तो ये चले जाएगा रूट और ये भी चले जाएगा रूट, तो ये बना कितना बेटा? 3 ऊपर चले जाएगा, 2 × 3, तो ये बना मेरे पास 6 सेंटीमीटर. पूछ क्या रहा था प्रॉब्लम में? डायमीटर. डायमीटर कैसे निकालोगे? 2 hours. डायमीटर कैसे निकालोगे? Yes, 2 sir, times 2 of r. So that will be equal to 2 × 6. That will be equal to 12 centimeters. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Next वाला देखो. A ray of light is been passing through a prism having the refractive index of your how much for me? √2. Suffers a minimum deviation. It is found that the angle of incidence is double the angle of refraction within the prism. What is the angle of your prism? ये हम लोग किए थे क्या? 35. देखो फिर से एक बार जल्दी से. A ray of light is been passing through a prism. तो पहले मैं prism ड्रॉ कर लूं. तो ये मेरे पास तो ये prism हो गया और ये हो गया इसका एंगल ऑफ योर प्रिज्म. और इस पे रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट होगा. अगर प्रिज्म नहीं होता तो रे ऑफ लाइट ऐसे चले जाती सीधा, और ये इसको मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूं तो ये नॉर्मल बन जाएगा. ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये रे ऑफ लाइट यहाँ से जाते यहाँ पर बेंड करेगी इस तरह से, तो ये बन जाएगा मेरे पास रिफ्रैक्शन. तो अब देखो, रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू ए प्रिज्म हैविंग ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरे पास √2 एंड सफर्स अ मिनिमम डेविएशन. व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम डेविएशन बेटा? कल बताया था मैंने. Yes, I1 sir. will be equal to your I2 and R1 will be equal to your R2. ठीक है ना? तो ये हो गया मिनिमम डेविएशन में. It is found that the angle of incidence is double the angle of refraction. तो म्यू हो गया मेरे पास √2. Angle of incidence is 2 times of angle of your refraction. So apply the Snell's law right now here. So it is μ1 into your sine of your I is equals to your μ2 into your sine of your R. तो μ1 into your μ1 क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A रे sin I will be equal to how much बेटा? Sin of 2R. Refractive index of this one is nothing but √2 into your sine of your R. ठीक है? This can be written as of your sin 2 theta. Sin 2 theta can be written as of your 2 sin 2 sin theta theta into cos your theta. cos theta is equals to √2 into your sine of your R. ये sin R चले गया मेरे पास. So cos R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? √2 divided by 2. So that will be equal to √2. 2 कैसे लिख सकता हूँ मैं? √2 into √2 लिख सकता हूँ. √2 1 by √2. 1 by √2. यानी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 45 डिग्रीज. Yes, sir. R की वैल्यू आ गई 45 डिग्रीज. In minimum deviation, angle of prism will be equal to how much beta? A will be equal to your R1 plus of your R2. That will be equal to R plus R. That will be equal to 2R. Yes, So A sir. will be equal to how much for me? 2 times of your R. So A is equals to 2 into R value is nothing but 45 degrees. 2 into 45 degrees is 90 degrees. So angle of your prism will be equal to how much beta? Angle of prism is 90 90 degrees. degrees. Clear hai? Sure. Next Yes, one. sir. If one face of a prism angle 30 degrees and mu is equals to √2 is silvered, the incident ray retraces its initial path. What is the angle of incidence? If one face of a prism angle 30 degrees and refractive index √2 is silvered, okay, silvered, the incident ray traces its initial path. What is the angle of your incidence? यानी क्या बोल रहा है यहाँ पर? एंगल ऑफ योर प्रिज्म कितना दे रखा है बेटा? 30 डिग्री. 30 degrees. तो एंगल ऑफ योर प्रिज्म अगर मुझे 30 डिग्रीज दे रखा है बेसिकली, और रे ऑफ लाइट इज बीन इंसिडेंट, तो ये बन जाएगा इस तरह से. ये हो जाएगा एंगल ऑफ योर प्रिज्म 30 डिग्रीज, ये हो जाएगा 90 डिग्रीज और ये हो जाएगा 60 डिग्रीज. ठीक है ना? ये रे ऑफ लाइट है. हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? ये साइड सिल्वर्ड है मेरे पास, ये पूरा सिल्वर्ड है. ये रे ऑफ लाइट हम लोग इस तरह से इस पे डाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसका नॉर्मल. ये इस पे बेंड करेगा, स्ट्रेट जाएगा इस तरह से. जितने एंगल से ये एंड करा उतने एंगल से फिर वापस जा रहा है. तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड दिस वन इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R. वन फेस ऑफ ये प्रिज्म एंगल कितना है बेटा? 30 डिग्री. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? √2. ओके. क्योंकि हम लोग यहाँ पर मैंने लाइन इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि इस पे जब रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, तो उसी तरह से रे ऑफ लाइट वापस आएगा.
अगर आप प्रिज्म इस तरह से ड्रॉ करते, इसको सिल्वर करते, तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर कहीं गिरती और यहाँ से Yes. रिफ्लेक्ट होती, यहाँ पर जाती, तो यहाँ पर गिर के थोड़ी एंगल पे वापस आती। अगर मिरर मेरे पास इस तरह से है, अगर रे ऑफ लाइट इस तरह से गिरा तो वही एंगल से फिर रिफ्लेक्ट हो गया। तो नॉर्मली इट विल बी रिफ्लेक्टिंग, मतलब द प्लेन मिरर, द प्लेन साइड ऑफ द प्रिज्म मस्ट बी अ पैरेलल लाइक दिस एंड शुड बी मेकिंग एन एंगल 90 डिग्रीज विद द कर्व। तो ये हो गया मेरे पास इस तरह से। तो R will be equal to how much for me बेटा, ये that will be equal to how much for me 30 degrees. So apply the refractive index formula, it is mu1 into your sin I is equals to mu into your sin R. A से जा रहा है तो 1 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है मेरे पास I, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, साइन ऑफ योर R कितना है बेटा 30 डिग्रीज। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ये कैसा है मुझे बताओ। ये इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 है ना। Yes, R2 sir. वैल्यू यहाँ पर कितना है 90 डिग्री से, सॉरी 0 है, ये- 90 डिग्री से 0 Yes. isn't it? So R2 0 हो गई, तो ये इज इक्वल्स टू R1 हो गया। ठीक है, तो म्यू इंटू साइन I1, तो ये कितना बन रहा है देखो जल्दी से। 1 by साइन root 2. इज इक्वल्स टू √2, साइन 30 Sin कितना, I equal to 1 by root 2. साइन 30 कितना 1 by 2. 1/2, तो ये कितना बन जाएगा 1 by root 2. 1/√2, यानी I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। 45 degrees. Yes. ठीक है ना। सो व्हाट इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब क्या से लिखोगे 45 डिग्री। 45 degrees. चलो नेक्स्ट वन। तो an isosceles glass prism has one of its equal faces coated with a silver. What do you mean by isosceles glass prism beta? Uh, 3 sides. Three sides are same Same. or different? Same. देखो फिर से एक बार। An isosceles glass prism has one of its equal faces coated 2 with the equal silver. sides. हाँ, a ray is normally incident on the other face and is reflected twice and then emerges perpendicularly. Find the angle of your prism. तो मेरे पास prism इस तरह से हो जाएगा। One side of this one is silver, ये वाला। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला। An isosceles glass prism has one of its equal faces coated with the silver. A ray is normally incident. A ray is been normally incident on other face and it is reflected twice and then emerges. कितने बार reflect हो रहा है? Twice reflect हो रहा है Twice. and then emerges perpendicularly. Find the angles of your prism. तो ये मान के चलो angle of a prism है alpha. ये एंगल बन जाएगा मेरे पास बीटा और ये एंगल बनेगा मेरे पास बीटा, because two angles will be the same. So ray of light is been incident on this one in such a way that it is normally incident. तो ray of light यहाँ पर इस तरह से incident होगा। Bending. ठीक है ना, बेंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री। तो जितने एंगल से इंसिडेंट हो उतने एंगल से बाहर जा रहा है और इसको मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ इस तरह से। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो यहाँ पर जितनी एंगल से गिरा उतनी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, इस पे करेगा, 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन हो रहा बोल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से ये परपेंडिकुलरली जा रहा है फ्रॉम द अदर सरफेस, ये चले जाएगा इस तरह से और ये हो गया इसका फिर से नॉर्मल यहाँ। ठीक है ना, ये अल्फा है तो ये एंगल कितनी बनी बेटा 90 डिग्रीज। अगर ये 90 डिग्रीज बनी तो ये एंगल कितनी बनेगी बेटा, ये भी बनेगी अल्फा और ये भी बनेगी अल्फा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 90 है, ये 2 अल्फा है और ये कितना बनेगा बेटा कोई बता सकता है? ये बीटा है, ये परपेंडिकुलरली जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 90, तो ये बन जाएगा मेरे पास 90 माइनस बीटा, तो ये बन बीटा। जाएगा मेरे पास बीटा और ये भी बनेगा बीटा। ये बनेगा कितना 90 माइनस ऑफ योर बीटा। टोटल एंगल 90 होना चाहिए तो ये बीटा होगा। क्लियर है? Yes, sir. Isn't it? Now from this given figure if I am citing, the total angle of this one must be equal to how much बेटा 180 degrees। तो ये हो गया अल्फा प्लस अल्फा और ये कितना बन जाएगा बेटा यहाँ पर भी 90 माइनस ऑफ योर बीटा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. so total angle कितनी होनी चाहिए? Total angle should be equal to 180 degrees। 180. So I can write right now here alpha plus of your 2 beta, alpha plus of your 2 beta, that will be equal to 180 degrees। Yes, sir. अल्फा ये बीटा और ये बीटा, अल्फा
beta plus beta 2 beta, that must be equal to 180 degrees. This is my first equation. Now if I'm taking the ray diagrams for this one, ये हो गया point A, ये हो गया point B और ये हो गया point C. So in triangle ABC, बताओ जल्दी से क्या कर सकता हूँ मैं? In the triangle ABC, ये कितनी बनेगी बेटा? ये हो गया यहाँ पर 90, ठीक है ना? तो ये एंगल कितनी बनेगी? 90 माइनस बीटा ही बनेगी, बिकॉज ये वाले सेम रहेगा ना. Yes, sir. ये टोटल एंगल कितनी बनेगी? 90 प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस दिस विल बिकम फॉर मी 90 माइनस ऑफ योर बीटा, दैट शुड बी इक्वल टू योर 180 डिग्रीज. 180. तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? देखो यहाँ पर कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है क्या? देखो ये 90, ये 90, ये 180 चले जाएगा. Yes, sir. सो 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0 हुआ, तो बीटा कितना हो गया? 2 अल्फा के बराबर हो गया. Yes. Yes, sir. Therefore, I can write from equation 1, alpha plus beta value 2 into 2 alpha will be equal to how much for me बेटा? 180 degrees. तो मैं अल्फा निकाल सकता हूँ कैसे? तो ये कितना बन जाएगा? अल्फा प्लस 4 अल्फा that is equals to 5 alpha that is equals to 180. 180 So degrees. alpha will be equal to your 180 divided by your 5. 5. So 5 3 is 15 or 3 5 6 is 5, 6 30. are 30. So alpha value will be equal to your 36 degrees. अगर अल्फा वैल्यू 36 डिग्री है तो बीटा वैल्यू कितनी बन जाएगी? बीटा वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा है, सो इट Yes, इज sir. 2 into your 72. 36. 36 2 is 72. 72. बीटा वैल्यू हो गया 72. क्लियर है? Yes, sir. चलो वेरी गुड. फाइंड द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द फ्लिंट ग्लास. अभी बेटा टाइम हो गया, मेरे को और एक क्लास है नेक्स्ट वन, ये बाकी का फिर हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना? और 2-3 Okay, क्वेश्चन से मैं आप लोग को भेज देता हूँ, आप लोग ट्राई कर लो, अगर नहीं आया तो कल की क्लास में पूछ लेना. एंड प्लीज ट्राई टू डू द PYQs ऑफ द रे ऑप्टिक्स फॉर गॉड से. लाइट मत लो, 1 से 2 बार करो, अगर हो गया तो टाइम मिला तो फिर एक बार करो, फिर एक बार करो, फिर एक बार. मेडिकल सीट आने के बाद मत करो, हैप्रोन पहनने के बाद मत करो, लेकिन फिलहाल आने से पहले जितना भी आया भी है तो फिर एक बार आया तो फिर एक बार करो. मैं इतने बार बोल रहा हूँ, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है बेसिकली. Yes, sir. Okay, ठीक है sir. ना? चलो ठीक है, टेक केयर, बाय.